गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें। आज का वचन हमें मिलता है भजन संहिता उसका 22वां भजन और उसके 27 और 28 पद, जहां पर लिखा है, All the ends of the earth will remember and turn to the Lord, and all the families of the nations will bow down before him. For dominion belongs to the Lord, and he rules over the nations. Amen. आप देखिए जो पद है अपने आप में जो है ये इट लुक्स बियॉन्ड ऑल द टाइम्स एंड बियॉन्ड सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप देखिए यहाँ जो भविष्यवाणी थी जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 में पूरी होती है। 1-3 ना? Genesis 12 verses 1 to 3. The Lord had said to Abram, Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Amen. आप देखें परमेश्वर कहता है अब्राहम से 3 बातें छोड़ने के लिए वहाँ उसे 7 प्रकार की आशीष देता है। Amen. उनमें से एक आशीष थी, मैं तेरे वंश को महान बनाऊंगा, मैं तेरे वंश को जो तुझे आशीष देंगे उन्हें आशीष दूंगा। ये बात आप देखें जकरयाह उसका 12वां अध्याय 10 पद। Zechariah chapter 12 verse 10. And I will pour out on the house of David and the inhabitants of Jerusalem a spirit of grace and supplication. They will look on me, the one they have pierced, and they will mourn for him, as one mourns for an only child, and grieve bitterly for him, as one grieves for a firstborn son. इसके अगले अध्याय के जकरयाह 13:1 में हम देखते हैं वहाँ है रोना पीटना। Zechariah chapter 13 verse 1. On that day a fountain will be opened to the house of David and the inhabitants of Jerusalem to cleanse them from sin and impurity. आप देखिए जो sin and purity होगा they'll be cleaned। बात हम देखते हैं जकरयाह चैप्टर 13:9 में। Zechariah chapter 13 verse 9. This third I will put into the fire. I will refine them like silver and test them like gold. They will call on my name and I will answer them. I will say, they are my people, and they will say, the Lord is our God. आप देखें यहाँ जब देखते हैं 1/3 of people will come to the Lord for cleansing। आप देखें जकरयाह 49 में। Zechariah chapter 14 verse 9. The Lord will be king over the whole earth. On that day there will be one Lord, and his name the only name. Amen. आप देखें जो भाव है वो है भविष्य मसीह के आने का। भविष्य पूरी पृथ्वी जो है मसीह के आगमन से भर जाएगी। लोग जो हैं उसके बाद जो है पवित्र होने के लिए आएंगे। आप देखें जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। आप देखें पद 28 में। पद 28 ओके, भजन संहिता 22 और उसका 28। क्योंकि राज्य यहोवा ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। एंड in English, for dominion belongs to the Lord, and he rules over the nations. आप देखें मैं और आप किस राज्य के अधिकारी हैं, किस राज्य के नागरिक हैं, वो है परमेश्वर राज्य, जहाँ जो है जो राजा है वो है यीशु मसीह। ये बात जो है यशायाह उसके 9 अध्याय के 7 पद में कही गई है। Isaiah 9 verse 7. Of the greatness of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne
and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. ना केवल राजा बदल गए, परंतु वहाँ का जो संविधान है वो बदल जाएगा। आप देखें, ये बात कही गई है रेवलेशन 19:16 में। Revelation 19:16, on his robe and on his thigh he has this name written, King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. आप देखें यहाँ का जो राज्य है, उसका जो यीशु राजा है वो है यीशु मसीह। रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 29। Or is God the God of Jews only? Is he not the God of Gentiles too? Yes, of Gentiles too. राजा बदल गया, उसकी नागरिकता बदल गई, वो सब उसके जो नागरिक हैं, ना केवल यहूदी हैं परंतु अन्य जाति भी हैं। Amen. तो जो नागरिक हैं वो हैं यहूदी, अन्य जाति और आप उनमें। Yes. आप देखें, ये बात कही है रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 5 में। Revelation 1:5, and from Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth, to him who loves us and has freed us from our sins by his blood. वहाँ का जो राज्य है वो है राजा है यीशु मसीह, वो है जी उठा हुआ राजा। आप देखें, ये बात कही है रोमियो उसका 12 अध्याय 5 पद। Romeo 5 Revelation 5. रेवलेशन 12:5। Yeah. Revelation 12 verse 5. She gave birth to a son, a male child, who will rule all the nations with an iron scepter, and her child was snatched up to God and to his throne. वो जो राजदंड है उसका होगा लोहे का। आप देखें, भजन 96 उसके 10 में ही कहा गया है। Psalm 96 verse 10. Say among the nations, the Lord reigns. The world is firmly established. It cannot be moved. He will judge the peoples with equity. ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में राज्य किसका है? यीशु मसीह का। ये जो बड़ी घोषणा है, राज्य का बड़ा अनाउंसमेंट है। आप देखिए रोमियो उसका 12 अध्याय 13 पद में। Romans 12:13, and it says here, share with the Lord's people who are in need. Practice hospitality. Is that what? यस यस। Yeah. Practice hospitality. आप देखें, राजा है, राज्य है, राज्य के नागरिक हैं, राज्य का संविधान है, Amen. वो है आपस में बांट खाने का, आपस में एक दूसरे के जरूरतों में उनकी मदद करने का, Passion का. कंपैशन का। आप देखें, यहाँ जो बात हो रही है वो है दया की, भाईचारे की, मेल मिलाप की, और वो है शुद्धता के आधार पर। Hallelujah. आप देखें, यीशु मसीह आने वाला है। Amen. Yes, Lord. हमारे जो दुख हैं, तकलीफें हैं, उनका अंत होने वाला है। आइए फिर से बात करें, प्रार्थना करें, प्रभु के नाम को सराहें। Yes. तो मेरी प्रार्थना है मेरे अपने लिए, भाइयों के लिए, तो आपको जो राज्य आने वाला है, प्रभु जी आप दया करें। मेरी प्रार्थना है हर एक को आप संभालें। प्रभु जी मेरी प्रार्थना है अपने राज्य में हर एक को ले लें, दया करें, प्रार्थना सुन लें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी आप मदद करें, दया करें। हमारी प्रार्थना को आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु नाम से मांगा है, आमीन। आइए वह बेनिफिट प्राप्त करें, प्रभु से आशीष वचन प्राप्त करें। हमारे परमेश्वर पिता का, अपने प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हर एक के साथ होती रहे। आमीन आमीन।